संत रामपाल जी महाराज एक अजिहे महान संत जिन्हां ने अपनी सत भगती, तत्व ज्ञान, करुणा ਅਤੇ सेवा ਦੇ बल ਤੇ समाज ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਅਦਭੁਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਏਡਜ਼ ਆਦਿ ਠੀਕ ਹੋਈਆਂ। ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਯੂਨਿਟ ਖੂਨ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਭੈਣ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਦਹੇਜ ਮੁਫਤ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਇਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਉਜੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਸੇ। ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸੰਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੁਫਤ ਭੰਡਾਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਧਰਮ, ਹਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਹਰ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ, ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਕਦੇ ਹਨ। ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਰਮ ਕਿਸੇ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਹੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਭੂਚਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਣਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਚਾਹੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਅਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਧਨ ਬਣਾਈਏ। प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। दर्शकों,
हर इंसान ईश्वर की भक्ति इस विश्वास के साथ करता है कि ईश्वर के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। परमात्मा की डिक्शनरी में असंभव जैसा कोई शब्द नहीं होता। इसीलिए हर व्यक्ति संतों के पास जाकर अपनी समस्याओं का समाधान और मार्गदर्शन पाने की उम्मीद रखता है। आज हम बात करेंगे नंद किशोर जी की, जो अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। पहले वह जय गुरुदेव पंथ से जुड़े हुए थे, परंतु नशे की लत से परेशान थे। उन्होंने चाहा कि नशे से मुक्ति मिले और जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त हो। फिर एक दिन रेल यात्रा के दौरान उन्हें एक आध्यात्मिक पुस्तक प्राप्त हुई। इस पुस्तक के माध्यम से वह जगत गुरु तत्वदर्शी संत जी के आश्रम पहुंचे, जहां पर उन्होंने नाम दीक्षा ली। नाम दीक्षा लेने के तुरंत बाद ही उनकी अस्थमा और साइटिका जैसी बीमारियां पूरी तरह समाप्त हो गईं और उनका नशा भी छूट गया। इस भक्ति के अद्भुत प्रभाव ने उनके जीवन को बदल दिया। तो आइए जानते हैं स्वयं नंद किशोर जी के जीवन की संपूर्ण कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नंद किशोर माहौर है। नंद किशोर जी आप कहाँ से हैं? मैं R.K. पुरम शासनीगेट आगरा रोड अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से। नंद किशोर जी आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने दीक्षा 22 सितंबर 2013 को ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी, हम जो है बाबा जय गुरुदेव जी से 89 में दीक्षा लिए हुए थे और तभी से हम उन्हीं की भक्ति किया करते थे, लेकिन उस भक्ति से हमें कोई लाभ नहीं हुआ जी। करीब 30 बरस उनकी भक्ति की हमने की थी, लेकिन 30 बरस में हमारे ना तो कोई विकार दूर हो पाई हमसे। हम जैसे गुटखा, बीड़ी, पान, तम्बाकू, नशीली चीज़ों का सेवन किया करते थे और कोई भी विकार हमसे नहीं छूट पाया वहाँ पर। और ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा, इनकी भी भक्ति हम साथ साथ में किया करते थे, लेकिन किसी भी भक्ति से हमारा कोई लाभ नहीं हुआ। सर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? सर एक दिन हमको ऐसी जिज्ञासा हुई कि इस जो भक्ति हम कर रहे हैं बाबा जय गुरुदेव की, इससे हमें कोई लाभ नहीं हो पा रहा, तो कोई हमें ऐसे संत मिलें जिससे कि हमारे सारे विकार दूर हों और जो हम चाहते थे जीवन मरण से मुक्ति हमें कैसे मिले, तो ऐसे कोई संत मिले। तो हमें एक दिन रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे थे, तो वहाँ पर जो है एक भगत उनसे दीक्षा लिए हुए थे, वो उनसे हमारी वार्तालाप हुई और हमने उनसे कहा कि भाई आप तो बहुत अच्छी मतलब संत से दीक्षा लिए हुए हैं, क्या हमें भी वहाँ जा सकते हैं हम? बोले कि क्यों नहीं। उन्होंने हमें एक पुस्तक दी, ज्ञान गंगा पुस्तक को जब हमने पढ़ा तो देखा वाकई उसमें एक अनमोल ऐसा ज्ञान था जो हमें आज तक नहीं मिल पाया था। तो हमने उनसे वहाँ से उनका पता लिया, फ़ोन नंबर्स भी लिए जो कि गीता मतलब ज्ञान गंगा पुस्तक में पहले से थे। उन पर हमने फ़ोन किया, फ़ोन करके उनसे हमने पता ठीक तरह से समझ लिया। समझने के बाद मैं और एक हमारे मित्र बरवाला आश्रम गए। वहाँ जा कर के हमने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको भी लाभ प्राप्त हुए? जी सर, मेरे को बहुत लाभ हुए। मैं पहले अस्थमा का रोगी हुआ करता था। रास्ता चलते में मेरे को सांस फूलती थी मेरी, और मेरी डांट दांतों में परेशानी रहा करती थी। जो वहाँ दीक्षा लेने के बाद और भक्ति करने के बाद मुझे काफ़ी उनसे लाभ मिला। संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ से मुझे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, मेरे साइट का प्रॉब्लम बन गई थी, जो मुझसे चलने में बहुत दिक्कत हुआ करती थी। मैं अपने कमरे से बाथरूम तक भी नहीं जा पाता था, इतनी मुझे दिक्कत हुआ करती थी। एक्सरे भी कराया था सर मैंने, और एक्सरे में बताया कि आपकी जो है हड्डी से मांस हट गया है और इसमें आपको ठीक होने में काफ़ी समय लगेगा। तो सर मैंने उनसे दवा ली, लेकिन मुझे कोई किसी तरह का आराम नहीं मिला। फिर कहते हैं ना कि करे करावे साइयाँ, मन में लहर उठावे, दादू सिरदर जीव के आप बगल हो जावे। संत रामपाल जी की कृपा से मैं आज बिल्कुल ठीक हो गया। मेरा वज़न करीब 14 किलो मेरा वज़न कम हो गया और मैं आज चल भी नहीं पाता था। आज मैं अच्छी तरह से 5-7 किलोमीटर दौड़ लगाता हूँ सुबह सुबह, और मुझे काफ़ी आराम मिला है। सर क्या आप नशा भी करते थे? जी हाँ, मैं बीड़ी, सिगरेट, पान, तम्बाकू, गुटखा, सारी नशीली चीज़ों का सेवन किया करता था। और मैंने बहुत संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने से पहले मैंने बहुत प्रयास कर लिए उनको छोड़ने के लिए, लेकिन मैं छोड़ नहीं पाया। जिस दिन से संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली, मेरे सारे बेकार दूर हो गए।
सर आपने बताया कि आप काफ़ी टाइम से जय गुरुदेव पंथ से जुड़े हुए थे और नशा भी करते थे। लाख कोशिशों के बावजूद भी आपका जय गुरुदेव पंथ में नशा नहीं छूट पाया। फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आपका नशा छूट गया। तो सर संत रामपाल जी महाराज के पास ऐसी क्या भक्ति साधना है जो इतने सालों का नशा संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने मात्र से ही छूट गया? सर रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाकर के उन्होंने जो ऐसा अनमोल जो ज्ञान दिया हमारे लिए, उस ज्ञान से ही और उस भक्ति के करने से ही हमारे सारे विकार दूर हो गए। बाबा जय गुरुदेव जी के यहाँ नहीं छूट पा रहे थे। बाबा जय गुरुदेव जी तो स्वयं कहा करते थे कि बच्चों मैंने तो कभी बीड़ी सिगरेट पी नहीं, आप अगर चाहो तो बीड़ी सिगरेट पी सकते हो, लेकिन यहाँ दीक्षा बाद में मिलती है, पहले ये बताया जाता है कि आपको किसी तरह का कोई भी विकार नहीं करना है, बीड़ी सिगरेट पान तंबाकू कोई भी नशीली चीज़ आपको इस्तेमाल नहीं करनी है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, खास करके जय गुरुदेव पंथ वालों के लिए आप उनके लिए क्या संदेश देंगे? सर मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि जो ज्ञान वहाँ पर नहीं मिल पा रहा था और परमात्मा यहाँ पर संत रामपाल जी यहाँ पर जो है ऐसा ज्ञान दे रहे हैं जो वहाँ नहीं मिल पा रहा था, और आप संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आएँ और आकर के जो है अपना सारे विकारों को दूर करके और जो एक अनमोल भक्ति वो दे रहे हैं उसको प्राप्त करें और अपना कल्याण कराएं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? चैनल पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है और उसके नीचे एक पीली पट्टी जो लगातार चलती रहती है, उस पर नंबर दिए हुए होते हैं। उन नंबरों पर फ़ोन करके आप अपने नज़दीकी नामदान केंद्र का पता पूछ करके वहाँ जा करके और नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत्साहिब। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। ये है बाई बाले वाली गुरु नानक देव जी की जन्म साखी। भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर से ये छपी है। भाई बाले वाले गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, पंजे साहिब और 10 पातशाह का जीवन संपूर्ण साखी सही दर्ज। भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर प्रकाशक है इसके 559 पृष्ठ पे है ये समुद्र दी साखी। एक दिन मर्दा ने कहा कि महाराज मेरा मन चाहता है कि समुद्र में जो लंका है वहां का भ्रमण किया जाए। तो ऐसे ही चलते चलते अब ये सारा ये आ गया कि आगे आगे गुरुजी ओम सोहम का जाप करते चले जा रहे थे। वो पंजाबी ना समझ में आई होती, हिंदी में ननक रखी है। और फिर मर्दाना ने सोचा हम भी ओम सोहम का जाप क्यों ना करें। जब मर्दाना भी ओम सोहम की रट लगाने लगा तब वह लगा गोते खाने। गुरुजी पीछे पीछे तो हंसकर कहने लगे कि हे मर्दाने से इसका धर्म है कि वह गुरु के बताए मार्ग पर चले, इसलिए तू फिर वाहे गुरु जप, तेरा उसी से कल्याण है। पुण्यात्माओं ऐसा क्यों कहा गुरु नानक देव जी ने? स्वयं तो जाप जप रहे सतनाम का और शिष्यों को कह रहे हैं ये नहीं जपना, क्योंकि उनको आदेश था उस परम पिता का, धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार नाम किते बार न जाई, सार शब्द बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस न तेरही। गुरु नानक देव जी को परमात्मा मिले थे सचखंड से आकर के, अपनी लीला अनुसार सभी अच्छी आत्माओं को मिलते हैं जैसे वेद बताते हैं। और उनसे कह दिया था कि ये नाम जपो, तुम ये सतनाम जपो, ये है 2 अक्षर का नाम। और वो ये राधा स्वामी वाले ने कहा 2 अक्षर जो गुरुमुख जापे वो एक गुरु पूरा कहा है जो 2 अक्षर का वेद बतावे। 3 नाले तो पूरे को नहीं तो 5 अक्षर के बतावे है। अब 2 अक्षर का ये है जो आपके समक्ष कहा।
और गुरु नानक देव जी ने इसलिए मना कर दिया था बरदाने को कि कहीं आने वाले समय में कोई इस नाम को जाप ना कर ले और भेद खुल जावे, क्योंकि गुरु नानक देव जी जैसे महापुरुष, उनको भगवान चाहिए था, समाज नहीं। उन्होंने परमात्मा की आज्ञा का पालन किया। इस मंत्र का किसी को थर्ड पर्सन को भेद नहीं दिया, सेकंड को भी नहीं दिया, और ये प्रमाणित जरूर कर दिया कि मैं यूं नाम जप्या करता, इससे मेरा मोक्ष हुआ। आज वो सतनाम पुण्यात्मा आपको मिल गया है और इससे मोक्ष होगा। ये बांटे 5 नाम, और फिर न ना समाधि ला ले, बस 5 नाम तो मंडला के हैं, फिर तुम कित गड्ढोगे जब ये मंडलाएं के काल के हैं, तुम कहाँ जाओगे फिर? वो जाने वाला नाम बताओ। परमात्मा कहते हैं सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छिपाए। अब सो हम शब्द ने ले लिया कबीर साहब की वाणी ते, अब वो सत शब्द को तो ना इनका पल्ला पड़ा, और ना ये वो नाम 2 अक्षर का नाम नहीं देते। तो इससे सिद्ध हो गया कि राधा स्वामी पंथ वालों का ज्ञान गलत, इनकी वे ऑफ वर्शिप, इनकी साधना गलत। तो ये पूरा पंथ काल के जाल में है। दास कोई ईर्षावश नहीं कह रहा, परमार्थवश ये बात कह रहा है। पुण्यात्माओं, ये जन्म साखी एक सरदार के बच्चे ने ला कर दी हमारे को, जब इस ज्ञान से परिचित हो गया। हमने तो गुरु ग्रंथ साहिब को देखा और सदग्रंथों को देखा, तो वो अपने इतिहास से खुद परिचित होते हैं प्राणी। उसने लाकर बताया कि जी आपने आज दृढ़ विश्वास हो गया हमारे कि इसी मंत्र को गुरु साहिब जाप करा करते थे, और गुरु नानक देव जी के अतिरिक्त इस मंत्र का किसी भी नीचे उसके बाद के जितने भी गुरु साहिब हुए हैं उनको भी इस मंत्र का भेद नहीं था। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। जब गुरु नानक देव जी ने अपने शिष्य को इसलिए कह दिया कि कहीं आगे इसका कोई जाप ना कर ले, और वाणी में लिख रखा था उन्होंने अपनी वाणी में ये मंत्र, तो उस वाणी को छोड़ दिया गया गुरु ग्रंथ साहिब की रचना करते समय। किस लिए? कि कहीं कोई, क्योंकि गुरुदेव का आदेश है कि ये मंत्र नहीं जपना, तो वो बची हुई वाणी, छोड़ी हुई वाणी, एक प्राण संगली नाम की एक पुस्तक अलग से बना रखी है। उसमें स्पेशल लिखा है कि केवल गुरु नानक देव जी की पहले की वाणी है, जो गुरु ग्रंथ साहिब की रचना करते समय रह गई थी, ये अलग से लिखी गई। उसमें क्लियर लिखा है दोनों अक्षर ये। अब यही कहते हैं जिन जिन को भगवान मिले, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, काशी माहे कबीर हुआ। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि हमें भगवान ने तारा, किन किन को? हम सुल्तानी, इब्राहिम सुल्तान अधम नामक एक मुसलमान राजा थे, नानक जी को, दादू जी को, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माए कबीर हुआ। अब गरीबदास साहिब जी ने अपनी अमृतवाणी में लिखा है, ओ हम सो हम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। ये 2 अक्षर का मंत्र ये तुम्हें दिया जाता है। कहते इसके एक श्वास की सिमरन एक पालड़े में धर दे, तराजू के एक पलड़े में, और दूसरी तरफ 14 लोक चढ़ावे। 14 लोक ये भगवान शिव का लोक, विष्णु का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, दुर्गा का लोक, और ये नीचे के पाताल, फिर ये स्वर्ग लोक, और ये ब्रह्मलोक, धर्मराज का लोक। ये कहते हैं 14 लोक तक रख दे उस एक मंत्र के जाप के बराबर के पलड़े में, और 3 लोक पासिंग धरे। पासिंग कौन सी होती है? जैसे हमारे घरों में ये बिजनेस करने वाले जो बनिए आते थे गेहूं कणक तोलने के लिए, जैसे गेहूं गुड़ शक्कर जो भी मोल लेने आते थे, तो वो क्या करते थे, पहले धनी को तराजू दिखाते थे, देख ले भाई, उसमें जो थोड़ी त्रुटि होती थी तो उसको बैलेंस बनाने के लिए, उसकी करेक्शन करने के लिए जो
सामान जैसे गेहूं तोलना है तो गेहूं 2 मुट्ठी उठाकर दूसरी साइड डाल लेते थे ताकि वो उसमें जो डिफेक्ट है वो ठीक हो जाए, उसमें कोई डिफेक्ट ना रहे, पलड़ा बिल्कुल पैरेलल हो जाए। तो वो पास्यंग बोला करते उसने, पास्यंग, और उसी तरफ बट्टा रख लेते थे और बाकी शेष सौदा तोला करते थे अलग से। तो क्या बताते हैं कि ये 2 अक्षर का मंत्र है, ओम सोहम पालड़ रंग होरी हो, और 14 लोग चढ़ावे राम रंग होरी हो, और ये 3 लोग तय पासिंग दर दे, इनकी तो गिनती है कोई ना, सौदे में कोई नहीं है। और तोड़ा तुले तुलाया राम रंग होरी हो, कहते वो पलड़ा जिसमें एक सतनाम के सुमरण का एक कीमत रख दी जाए तो पलड़ा उठे नहीं, 14 लोग भी दर दे दूसरे साइड में ऊपर जाएंगे वो, यानी इतना वैल्यूएबल है ये। पुण्यात्माओं, एक लाला जी था, वो 2 भाई थे, उनमें से छोटे की मृत्यु होगी, वो छोटे के 2 पुत्र थे, कोई 18 वर्ष का, कोई 16 वर्ष का। अब जब देखा पिताजी का अंतिम संस्कार हो गया, उसकी गति गाती जैसे ये कराया करें सारा काम हो लिया, तब रोटियों की समस्या आई। तो उन बच्चों की मां ने, जिसका पति मर गया था, उसने अपने दोनों बच्चों से कहा कि बेटा तुम अभी बच्चे हो, तुम बिजनेस नहीं कर सकते, अपने ताऊ जी के साथ, पिताजी के बड़े भाई को ताऊ जी बोलते हैं, तुम अपने ताऊ जी के साथ मिलकर बेटा पार्टनरशिप कर लो और अपना बिजनेस करो। उनकी माँ ने कहा कि ले बेटा, मेरे पास तेरे पिताजी के समय के कुछ लाल रखे हैं, एक लाल उसमें लाखों रुपए का होता था। उसकी माँ ने एक पोटली में 10-12 लाल बांध रखे थे, वो दे दिए पुत्रों को, और उनसे कहा कि अपने ताऊ जी को कह दो, पैसे तो हमारे पास है नहीं, इन लालों को गिरवी रख दें, गहने रख दें, और फिर कमाएंगे, हमारे हिस्से में जो आवेंगे फिर इनको छुटवा लेंगे। अब दोनों बच्चे माँ के दिए हुए लाल लेकर गए, ताऊ जी से प्रार्थना की, ताऊ जी मेरी माँ ने कहा है हम अभी बच्चे हैं, हम बिजनेस नहीं कर सकते, पैसा हमारे पास है नहीं, ये लाल ले लो, इनको गिरवी रख लो, इनके बदले कुछ धन ले लो, हमारा पार्टनरशिप कर लो। अब उस सेठ ने, उनके ताऊ जी ने वो खोल के देखे, उल्टी गठड़ी बांध दी नो की नो। अग बेटा ये तो बहुत कीमती है, इनको वापस रख के आओ, अपनी माँ को कह दे छुपा के रखे इनको चौकस, और बेटा ऐसी कोई बात नहीं, मैं पार्टनरशिप करता हूँ और मेरा वहाँ पर उधार चलती है, उधार जुआ के लाऊंगा तुम्हारे को, और फिर देते रहेंगे धीरे धीरे, जरूरत होगी जब ले लेंगे लाल को। और तेरी माँ को कह अच्छी तरह सुरक्षित रखे इनको। दोनों बच्चे वापस आए, माँ से कह दिया कि माँ ताऊ जी ने ऐसे ऐसे बोला है। तो माँ ने बोली भाई ठीक से, ये रख दूंगी छुपा के, कभी ले लियो बेटा जब आवश्यकता हो। अब उसके ताऊ जी ले गया उनको, दोनों बच्चों को दूसरे शहर में, वहां उस बच्चों की पहचान करानी चाहिए कि ये समझ ले लाल और लालड़ी के वेद को। एक सेठ से 50,000 रुपए का सामान लिया उधार पर, जहां वो रुके हुए थे धर्मशाला में, आकर उनके ताऊ जी ने कहा बेटो, अपने भतीजों से कहा कि लो ये लाल उस सेठ को देकर आओ जिससे 50,000 रुपए का सौदा हमने उधार लिया है, और उसको कहना कि ये लाल है, ये रख लो, और हम आपके 50,000 रुपए दे जाएंगे, लाल ले जाएंगे। दोनों भाई गए, सेठ जी से कहा सेठ जी हमारे ताऊ जी ने ऐसे ऐसे कहा है, ये लाल आप रख लो और हम आएंगे आपके 50,000 रुपये दे देंगे, अपना लाल ले जाएंगे। अब उस सेठ ने क्या किया, एक जोरी बुलाया जो परख करता है,
और उसे दिखा कि भी देखना ये लाल कैसा है। जौहरी ने कहा ये लाल नहीं है, ये तो लालड़ी है। लाल तो लाख रुपए का होता है, ये तो 200 रुपए की बिना बिके, ये तो नकली है लालड़ी। अब उस सेठ ने वो उठा के वो लालड़ी बाहर फेंक दी गली में। ले जाओ थारे लाल ने, धोखेबाज हो, कपटी हो। अरे तुम्हारा ताऊ ऐसा तो नहीं था, आज तक तो उसने ऐसा जुल्म नहीं किया हमारे साथ, आज ये धोखा करते हो। मैंने कौन सा मांगा था तुम्हारे से। यानी 100 सुनाई। और वो बालक शर्मिंदे हो गए, उठा के उस लालड़ी को आगे और ढीला सा मुंह छोड़ रखा। उनका ताऊ जी बोला बेटा क्या बात होगी। वो कहने लगे ताऊ जी लाला जी घड़ा निकम्मा आदमी है, वो तो बहुत गलत बोलता है। हमारे लाल को लालड़ी बता रहा है। और एक आदमी बुलाया उसने पता नहीं कैसे चेक किया, ने बोला तो लालड़ी है, और गली में फेंक दी। और कहने लगा तुम्हारा ताऊ जी ऐसा तो नहीं था, धोखे भी करने लगा हमारे साथ। वो ताऊ जी ने तो खेल खेले रखा था। फिर देखे अरे बेटा ओहो, अरे ये लाल तो देख इधर रखा था भाई, मेरे से धोखे से दिया गया बेटा, ये तो सचमुच लालड़ी है। ले ये दे क्या लाल उसको, और कहो देखो हमारे ताऊ जी का धोखा लग गया। उसका दोनों विश्वास डट कर कहो। दोनों भाई फिर गए। अकेले लाला जी मेरे ताऊ का धोखा लग गया था, ले ये है लाल। उसने सेठ ने फिर बुलाया जोरी, वो पारखू। उसने आते ही देखते करके वो टेस्ट ने बोला हाँ ये है लाल है, ये है लाल है। अब वो सेठ कहता उन बच्चों को अग देख तुम्हारे आंख दी हो तो ये है लाल, और वो लालड़ी थी। अब उन दोनों बच्चों को ऐसा झटका लगा, उन्होंने घनी गौर से पहचान कर ली लाल और लालड़ी की। अब वापस आगे घर पे उनके ताऊ जी ने कहा बेटा जाओ अपनी माँ से वो लाल ले आओ, और उनको गिरवी रख देंगे किते, अरे चलेंगे दोबारा तो घनी उधार होगी अपने, उनको दे देंगे किते। अच्छा ताऊ जी भी गए, वो भागे गए दोनों। माँ कहा बेटा आ गए तुम, आगे आजा रोटी खाओ। नहीं पहले वो लाल दे, वो लाल दे। और ताऊ जी के ऊपर बहुत कर्जा हो गया है, उधार हो गई है, गिरवी रख के उनको अपना काम चलाएंगे। अगले बेटा वो माँ लाइट काट गवा के ठड़ी, अरे बेटा नो के नो रखे हैं। बच्चा ने सोची इब देखते लाल है कि लालड़ी। वो खोल के देखिए वो सारी लालड़ी थी। बच्चों ने वहीं पटक दी। अक माँ आप तो बहुत बोली हो, इनमें तो लाल एक भी नहीं है, ये तो सारी लालड़ी है। लाल तो लाख रुपए का होता है, ये 200 रुपए की भी नहीं। उनकी माताजी कहने लगी बेटा मुझे तो पता नहीं, तेरे पिताजी के समय के रखे थे, मैंने सोचा लाल होंगे ये। अब वो बच्चे लेकर नहीं गए वो लालड़ी अपने ताऊ जी के पास। जाके कहने लगे ताऊ जी मेरी माँ ना बड़ी भोली है, उनमें लाल तो एक भी को नहीं, सारी लालड़ी है। जब वो ताऊ जी कहता बेटा ये उस दिन भी लालड़ी थी तुम मेरे पास लेकर आए थे, यदि मैं कह देता ये लालड़ी है, लाल नहीं, ये 200 रुपए की भी नहीं है, तो तेरी माँ नो कब हो मेरा पति मर गया, तुम्हारे लाला ने भी लालड़ी बताओ है ताऊ। और बेटा आज तुमको मैंने इतना समझदार कर दिया कि लाल और लालड़ी की तुम खुद पहचान करने लग गए, अपनी लालड़ी आप पहचान ली। तो पुण्यात्मा दास चाहता है कि आपको इतना इंटेलिजेंट बना दूं आध्यात्मिक मार्ग में, तुम अपने अपने लाल और लालड़ियों को खुद पहचान लो। जैसे इस सिख बच्चे ने पहचान कर ये कि जन्म साखी गुरु नानक देव जी की आते दिखाई कि सचमुच आप जो कहते हो ये सत्य है और यही नाम मोक्ष का है, बाकी सब झूठ है। तो पुण्यात्माओं परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ये अमृतवाणी और ये ज्ञान ये सदग्रंथों में जो आज विद्यमान है उस समय हमें बताया था, लेकिन उस समय इनको प्रतिज्ञा दिवा दी थी धर्मदास तो ये लाख दुहाई, ये सार नाम और ये मूल ज्ञान, ये मूल ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान है। इसमें सब वे ऑफ वर्शिप भी, पूजा की विधि भी, और साथ में अध्यात्म ज्ञान, कैसे सृष्टि रचना हुई, कैसे क्या हुआ। कहते इसको अभी छुपा के रखना,
मूल ज्ञान बार जो पढ़ी, या बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। तो गुरु नानक देव जी ने बैन लगा दिया था इसके ऊपर कि खबरदार इसको जाप किया। तो अब बैन खोल दिया परमात्मा ने, उनकी दया से ये बिचली पीढ़ी आ गई और सबका कल्याण होगा जो शरण में आ जाएगा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव जी, कबीर साहिब जी, अल्लाहु अकबर, अल्लाह कबीर, कबीर देव, ये हमारे पिता हैं, परम पिता हैं। ये हमारे परम पिता हैं, ये हमारे परमात्मा हैं। और हम यहाँ काल के जाल में कष्ट उठा रहे हैं। हम आजीवन एक पेट को पूरा करने में ही अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं और ये कार्य अधूरा ही रह जाता है। हमारे जाने का समय आ जाता है। परमात्मा कहते हैं, तुम कहाँ आकर के फंस गए, तुम कहाँ रह रहे हो, विचार करो। ये कोई जीवन है? लेकिन परमात्मा को ये भी मालूम है कि इनके बस की बात नहीं। काल भगवान ने आपको विवश कर रखा है। इसने बड़े सुनियोजित तरीके से अपने को यहाँ फंसा रखा है। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी तक भी ये अपने ही भाई हैं। हम वहीं से चलकर आए हुए हैं। जो अच्छी आत्माएं होती हैं उनको ये अपने पुत्र के रूप में जन्म दे करके यहाँ अपने आहार के लिए व्यवस्थक प्रबंधक बनाता है और इनको एक एक गुण युक्त कर देता है। रजगुण युक्त ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी और तम गुण युक्त शिव जी को बना दिया। अब इनके बस की बात नहीं। इनके अंदर से एक ऐसी तरंग निकलती है जो इन तीन लोक के प्राणियों को प्रभावित कर रही है। भले ही ये भगवान अपनी राजधानियों में रहते हैं, शिव जी शिवलोक में, विष्णु जी विष्णुलोक में, ब्रह्मा जी ब्रह्मालोक में, लेकिन इनसे निकल रही वो तरंगें हमें यहाँ प्रभावित कर रही है। जैसे एक मकान के अंदर, रसोई के अंदर मिर्चों का छौंक लग रहा है। वो साकार वस्तु मिर्च यानी छौंक लग रहा है रसोई में, और तीसरे दूसरे अन्य कक्षों में बैठे हुए व्यक्तियों को भी छींकें आ रही हैं। इस प्रकार उन चीखों को रोकना भी जीव के बस का नहीं। ठीक इसी प्रकार इन तीनों भगवानों के शरीर से ऐसी तरंग निकल रही है जैसे मिर्च से निकल रही है, और वो हमें प्रभावित कर रही है, जिसके आधार से हम रजोगुण प्रभावित हो जाते हैं, संतान उत्पत्ति करते हैं। इतना प्रबल प्रेशर इस काल ने जीव के ऊपर डाल रखा है। फिर संसारिक सुख, कार कोठी बंगले बनाना, ये भी उसी रजोगुण के प्रभाव से हम यहाँ लगे रहते हैं, इसी व्यवस्था में। दूसरा सतोगुण का जो विष्णु जी के अंदर से जो सतोगुण की तरंग निकल रही है, उनसे हम एक दूसरे में मोह हमारा ऑटोमेटिकली हो जाता है, न चाहते हुए भी, और इतना प्रबल हो जाता है कि हमारे बस की बात नहीं, हम संतान या संपत्ति से मोह हटा लें। इसको सतिथि बोलते हैं। ये शुद्ध हिंदी का सतिथि, यानी ये पड़े रहे यहाँ, इनका जी लग गया रहे। और तीसरे का आपने पता ही है, भगवान शिव जी तो कल्याण करते हैं। शंकर जी के अंदर से निकल रही तरंग ये हमें क्रोधित करती है। ना जाने छोटी सी बात पर तू मैं और भयंकर युद्ध का रूप धारण कर लेती है। न जाने कितने प्राणी मर जाते हैं।
तो परमात्मा को मालूम है कि ये विवश कर रखे हैं, इतना समय नहीं छोड़ रखा है इस काल ने कि कभी ये सोच ले भगवान के बारे में। यदि कहीं जाते भी हैं किसी स्थान पर तो रास्ते में भी और आते जाते भी, और वहां 10 मिनट बेशक थोड़ा बहुत जिस पूजा में गए हैं 2-4 मिनट ध्यान लग जाना, तो फिर भी ध्यान उस बार ये व्यवस्था में रहता है। तो काल ने ये व्यवस्था सुनियोजित तरीके से कर रखी है कि मनुष्य जीवन पाकर ये प्राणी परमात्मा ना बचले, और बजाय कोशिश करे तो गलत बजाय शास्त्र विधि त्याग का मनमानी पूजाएं करे ताकि ये मेरे जाल में पड़ा रहे। वो दयालु परमात्मा आते हैं जिनको हम छोड़कर आगे थे अपनी नालायकी थे, क्योंकि वो हमारे हैं, हम उसके हैं। अपने का दुख अपनों को ही होता है। हम जितने भी यहाँ दुखी हो रहे हैं उतना ही परमात्मा भी हमसे दुखी है, हमारे कारण दुखी है। अब कारण क्या था कि सतलोक में इस काल ने गलती की थी, और हमने भी गलती की, क्योंकि हम अपने पिता को छोड़कर ये जब तप कर रहा था इसकी तरफ आसक्त हो गए। हम अपने परमात्मा को छोड़कर हम पतिव्रता पद से गिर गए, और हम इसको चाहने लगे भगवान को छोड़कर, जो हमें सर्व सुख देव था, सारी सुविधाएं थी, वहां कोई दुख नहीं था, कोई काम नहीं था, नैष्कर्म में मुक्ति वहां प्राप्त होती है, बिना काम किए वहां मिलता है आपको। तो हम वहां गलती हमने की, जिसका दंड आज हम यहां भोग रहे इसके साथ आ गए। इसने वहां एक और भयंकर गलती की कि जब ये दुर्गा युवा थी, परमात्मा ने इसको युवा बना करके इसके पास भेजा था, और हम सब आत्माओं को दुर्गा के शरीर में प्रवेश कर दिया था सूक्ष्म रूप में, और इसको कहा था बेटी तू वचन से जितने जीव कहेगी बना देना, बना सकती है, तेरे को मैंने पावर दे दी, कबीर भगवान ने कहा था। अब इस काल भगवान ने वहां इसके साथ बदतमीजी की थी। उस सच्चे लोक में यह बकवाद नहीं चलती, इसने बलात्कार करने की सोची थी, जिस कारण से इसको वहां से निष्कासित कर दिया। जब इसको निष्कासित कर रहे थे इसने बहुत याचना की। एक सहजदास नाम के परमात्मा के प्रथम जनपुत्र हैं, जो सबसे पहले 16 उत्पन्न हुए थे उनमें से एक है। उसे याचना की कि मुझे यहीं रखवा दो, प्रार्थना कर दो भगवान ते। उन्होंने प्रार्थना की थी सहजदास ने जाके भगवान के दरबार में, क्योंकि परमात्मा सतलोक के भी टॉप मोस्ट प्लेस पर विराजमान है। तो परमात्मा ने कहा था भेज दो, यहां से ये रखने योग्य नहीं है। तब सहजदास ने आके कह दिया कि मैं तो अर्ज करी अनुरागी, अब तुम विषय लोक जाओ भड़भागी। ये वहां से चल पड़ा, तो उसका प्रतिशोध ले रहा भी ये हमारे से, हमारे परमात्मा से प्रतिशोध ले रहा है कि उसकी आत्माओं को इतना सता दूं, ये तौबा बोलती रहे और वो दुखी रहे। ये इतना शैतान है जिसको हम भगवान मानते थे, ये ब्रह्म है। यहाँ ये ब्रह्म नाम से प्रसिद्ध है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, 3 प्रभु, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष तो ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है। संतों की वाणी में एक पारब्रह्म शब्द है, वो पारब्रह्म परब्रह्म के लिए नहीं, पार माने सबसे पार, सबसे लास्ट वाला, टॉप मोस्ट, यानी सुप्रीम गॉड। तो ये अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है, और इन दोनों के लोकों में और इनका सब ये नाशवान है, इनका शरीर ये सभी नाशवान है, जीवात्मा किसी की नहीं मरती। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष तू अन्य, उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम
श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है समर्थ, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अविनाशी परमात्मा है, उसको परमात्मा कहते हैं। फिर 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में ये कहता है कि मैं तो इसलिए पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो गया कि मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनसे मैं उत्तम, उनसे श्रेष्ठ हूं, उनसे तगड़ा हूं। जो 21 ब्रह्मांड में है ये मेरे से कम शक्ति के हैं, मैं इनसे ज्यादा शक्ति वाला हूं, इसलिए मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं। लोक वेद के आधार से, दंत कथाओं से मैं पुरुषोत्तम नहीं, पुरुषोत्तम तो 17वें श्लोक में बता दिया, वो कोई और है। तो ऐसे ये काल जो है यहां पर ये ब्रह्म नाम से प्रसिद्ध हो रहा है, लेकिन ये ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म मीन परमात्मा, लेकिन यहां पर ब्रह्म ये प्रसिद्ध हो गया, ब्रह्म कहलाता है। इसलिए उस कंप्लीट गॉड को, उस पूर्ण परमात्मा को डिफाइन करने के लिए ये तीनों बताने पड़ गए, ब्रह्म, परब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म। अब उसको परम अक्षर ब्रह्म बोलना पड़ा वेद पुस्तक ग्रंथों के अंदर। तो पुण्यात्माओं, अपनी जानकारी आप ही परमात्मा देने के लिए आते हैं। और परमेश्वर ने बताया था कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। परमेश्वर ने कहा था कि वेद मेरा ही भेद है, मेरी जानकारी दे रहे हैं, और मैंने ही सारी सृष्टि रची है, इस ब्रह्म की उत्पत्ति भी मैंने ही की है। तो उस जानकारी को देने के लिए परमात्मा यहां स्वयं सतलोक से गति करके आते हैं। ये परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं। सतयुग में परमेश्वर का नाम सत सुकृत रहता है। त्रेता में मुनिंदर नाम से परमात्मा प्रकट होते हैं। द्वापर में करुणा में नाम से परमेश्वर एक लीला करते हैं, जो बालक रूप धारण करके, शिशु रूप धारण करके फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं, जनसाधारण जैसी लीलाएं करते हैं। ऐसा वेदों में लिखा है कि वो परमात्मा प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करके नीचे आते हैं और धीरे धीरे बड़े होते हैं। और प्रत्येक, जैसे आम व्यक्ति जनसाधारण अपने हाथों से निर्वाह करके गुजारा करता है, निर्वाह करता है, अपने सब कर्म करता हुआ, ऐसी वो लीला करता है। और साथ में वो तत्वदर्शी संत की भूमिका भी करता है। तो वो परमात्मा कलयुग में अपने वास्तविक नाम से आए थे, कबीर नाम थे, कबीर नाम थे। आपको बहुत बार कथा सुनाई है, जब द्वापर युग में परमात्मा आए हुए थे कबीर जी, यानी परम अक्षर ब्रह्म, अपनी लीला करने के लिए। उस समय वो जब शिशु रूप धार करके एक तालाब के अंदर कमल के फूल पर विराजमान हुए। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। नमस्कार। सत ਸਾਹਿਬ जी। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨੋਹਰ ਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਮਨੋਹਰ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜੀ। ਮਨੋਹਰ ਜੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਭਗਤੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਰਣ ਕਰਨਾ, ਜਗਰਾਤੇ ਕਰਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਗਰਾਤਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਮਾਤਾ ਦਾ। ਇਹੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਬੜਾ ਸੀ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭਗਤ ਮਿਲਿਆ ਨੂਰਮਹਿਲ ਵਾਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੂਰਮਹਿਲ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ, ਵੀ ਕੋਈ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜੋਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਨਾਮ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਉੱਥੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ।
ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਘਰ ਆਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਲੋ। ਇਹਨੇ ਗੱਡੀ ਕਰਾਈ, ਗੱਡੀ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਲੈ ਗਏ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ। 1997 ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਗਏ ਜੀ ਅਸੀਂ। 1997 ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਇਆ ਉੱਥੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰਪੂਜਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲਵਾਈ ਦਾ, ਮੈਂ ਭੰਡਾਰੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। 1 ਹਫ਼ਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, 2 ਹਫ਼ਤੇ, ਮਹੀਨਾ, ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਗਲੇ 'ਚ ਟੌਂਸਰ ਵਾ, ਵੀ ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਚੱਲਣੀ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਫਟ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ, ਮੇਰੇ ਉਹ ਟੌਂਸਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੇ ਗਲੇ 'ਚ ਟੌਂਸਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਅੰਦਰ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਫਟ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਆਲ ਸਰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਉਹ ਗਲੇ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬੋਲਣੀ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ ਬੋਲਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੂੰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, 10-15 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਚੜੀ ਦਲੀਆ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਭਾਰਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਜੋ ਵੀ ਭੰਡਾਰੇ 'ਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜਾਦੇ ਲਾਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਮੇਰੀ ਲਾਤੀ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਇਹ, ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਹਲਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਬਣਾਊਗਾ, ਡਰਾਈਵਰੀ ਵੀ ਕਰੂਗਾ, ਚਲੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ, ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਚਲੋ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਛੱਤ ਪਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾ। ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਸੀ, ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠਿਆ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉੱਥੋਂ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਜੋ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਹੋ ਸੀਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਆ, ਜਾ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਜਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ। ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਲ ਲਿਖਾਤਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਆਈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਨੋਹਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਦਿਵ ਜੋਤੀ ਜਾਗਰਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕੀ ਭਗਤੀ ਸਾਧਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਕੀ ਗਿਆਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਵਿਧੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ। ਨੰਬਰ 1 'ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ। ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਨੰਬਰ 3 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜੋਤ ਆ ਜੀ। ਨੰਬਰ 4 'ਤੇ ਆਨੰਦ ਬਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ 4 ਵਿਧੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਜਾ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੀ ਕੰਸੈਪਟ ਸੀ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰੇਤਾ ਵਿੱਚ ਰਾਮਚੰਦਰ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਦੁਆਪਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸਾਧਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ? ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਜੀ
ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਘਰ ਆਏ। ਘਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਜੀ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ, ਵੀ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 2-4 ਦਿਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈ ਲਓ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨ 'ਚ ਧਾਰੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂ ਜਾਣਾ ਘਰ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਣੀ ਪਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨੂਰਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੋਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਰੇ ਭਗਤਹੀਨ ਕਾਹੇ ਜਾ ਗਾਇਆ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਨਾ ਕਿੰਨੀ ਬੈਠਾ ਜਨਮ ਗਾਇਆ। ਵੀ ਇਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਪਈ ਸਾਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਸਨਾਮ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਨਾਮ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਸਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਨਾਮ ਲਓ, ਚਲੋ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਜੀ, ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਪੁੱਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮਦਾਨ ਸੈਂਟਰ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਫੀ 15-20 ਮਿੰਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵਿਚਾਰ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਆਹ ਜੋ ਗਿਆਨ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਲੋਕ ਸੁਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਿਸੇ ਜਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਕੌਣ ਨਾਮ ਖਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਮ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਣੀ ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੈ ਦੇਵ ਨਾਮਾ ਵਿਪਨ ਸਦਾਮਾ ਤਿਨ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਬਈ ਹੈ ਅਪਾਰ, ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਸਮਰਥ ਦਾਤੇ ਚਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦੇ ਇਤਨਾ ਵਾਰ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਚਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤਾਂ ਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਨਾਮ ਸੱਚਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਾਮ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਈਏ ਪਾਈ, ਨਾਮ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਰਤਦਾ ਰਵਿਆ ਸਭ ਬਿਠਾਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਨਾਮ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲੇ ਉਹ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਕਹਾਵੇ, ਜੋ ਦੋਖਰ ਕਾ ਭੇਦ ਬਸਾਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਕਹਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ। ਔਰ ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹੀ ਨਾਮ ਪੂਰਾ ਆ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਝੂਠ ਹੈ। ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹੀ ਸੱਚ ਆ, ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਝੂਠ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਤਰਕ ਵਿਤਰਕ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਏ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਭ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਂਸਰ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦਿਵਯ ਜੋਤੀ ਜਾਗਰਤੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂਰਮਹਿਲ ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਟੌਂਸਰ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਆ। ਜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਟ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਖਤਰੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ। ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਛੰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਚੇਤੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਗਲੇ 'ਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੌਂਸਰ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੇਤੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ। ਉਹ
ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਗਲੇ ਟੌਂਸਰ, ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਗਾਹ ਮੇਰੀ ਘਟ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਐਨਕ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਐਨਕ ਕਦੇ ਲਾਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਨ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੇਰੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ 'ਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਭੋਗਣੀ ਹੀ ਪਊਗੀ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਆਏ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਆਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਵਤਾਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਦੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਭੋਗਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰਮਹਿਲ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਿਵ ਜੋਤੀ ਜਾਗਰਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਥਿਊਰੀ ਸੀ ਕਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭੋਗੂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਭੋਗਦਾ? ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਟ ਅਪਰਾਧੀ ਸਤ ਸੰਗ ਸੁਧਾਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਐਸਾ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਦ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਪੀੜਾ ਨਾ ਜਾਏ, ਐਸਾ ਪੀਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋ। ਪੀਰ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਉਸਦਾ ਨਾ ਮਨ ਨੂੰ ਐਸਾ ਪੀਰ ਕੀ ਧਿਆਣਾ ਹੋ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਐਸੇ ਪੀਰਾਂ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਜੋ ਭਗਤੀ ਆ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਥਿਊਰੀ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰਮਹਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ? ਕਰਮ ਭੋਗਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਾਂ ਸੰਤ ਕੱਟ ਦੇਣਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਹੋਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਗਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਧਨਾ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਬੈਠੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਲੱਗੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਬੈਠਣਾ ਆ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਬਸ। ਉਹ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਬਸ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਦਾ ਲੱਛਣ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰ ਜਾਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਬੀਰ ਸਾਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਦਾ। ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ VIP ਕਲਚਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਦਿਵ ਜੋਤੀ ਜਾਗਰਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਹੋਵੇ ਜਾਂ VIP ਕੋ ਕਲਚਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ? ਨੂਰਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ ਜੀ। VIP ਆਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਮਾਨ, ਖਾਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਨੂਰਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭੰਡਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਭਗਤ, ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਮਨੋਹਰ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੇਖੀ? ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਏ ਗਏ? ਕੀ ਖਰਚਾ ਸੀ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਸਰ ਜੀ, ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂਰਮਹਿਲ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ 4 ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਜੀ, 4 ਕੇਲੇ ਜਾਂ 4 ਸੇਬ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਰੂਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਨੂਰਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਮਨੋਹਰ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾ, ਰਾਮਾਇਣ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਫਲ ਜਨਮ ਮੋਕੋ ਗੁਰ ਕੀਨਾ, ਦੁਖ ਵਿਸਾਰ ਸੁਖ ਅੰਤਰ ਲੀਨਾ। ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਦੋਂ ਹੋਣੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਗਦਾ, ਹੋਰ ਜਗ ਸੁੱਤਾ ਮੋਹ ਪਿਆਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਔਰ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਹੈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ।
आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें